اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر، پہلی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کے جو گورنر تھے سی پی رادھا کرشنن، ایم ڈی اے نے انہیں اپنا امیدوار بنایا، اپ راشٹرپتی کا، وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا کا، اور وہ الیکشن جیت گئے۔ جیتنا تو تھا ہی، اب وہ جیت گئے اور اب وہ ملک کے وائس پریزیڈنٹ بن گئے ہیں۔ اب مہاراشٹر کے گورنر کے عہدے سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ان کی جگہ خبر آ رہی ہے کہ آچاریہ دیوورت مہاراشٹر کے نئے گورنر ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سی پی رادھا کرشنن 12 ستمبر یعنی آج نائب صدر کا حلف لیں گے، یہ جانکاری راشٹرپتی بھون نے دی ہے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کپل شرما، کامیڈی کنگ جنہیں کہا جاتا ہے، کپل شرما کو پھر وارننگ دی گئی، یا یوں سمجھیے کہ دھمکی دی گئی راج ٹھاکرے کی پارٹی کی طرف سے۔ کیا دھمکی؟ کہ خبردار، اگر آئندہ ممبئی کو بامبے کہا تو پھر خبردار، یعنی ممبئی کو بامبے کہنے پر سخت اعتراض، آپتی، آبجیکشن راج ٹھاکرے کی پارٹی نے جتایا ہے۔ کپل شرما اپنے شو میں اکثر بامبے کہتے ہیں اور بامبے کہنے پر راج ٹھاکرے کی پارٹی نے ناراضگی جتائی ہے۔ ایکچوئل میں زبان کا جھگڑا ہے، اور زبان کا جھگڑا نہیں ہے، زبان کا جھگڑا بنایا جاتا ہے اپنی دال روٹی، اپنی دکان چمکانے کے لیے، ورنہ ساری زبانیں ہمارے اپنے ملک کی ہے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیو سینا کے اوریجنل ادھیکش، یعنی اوریجنل شیو سینا کے ادھیکش ادھو جی ٹھاکرے، خبر آ رہی ہے کہ ان کو دسہرہ ریلی کے لیے شیواجی پارک کی اجازت مل گئی۔ جی ہاں، دعویٰ شندے گروپ کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، شیواجی پارک کو مانگا گیا تھا، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ادھو ٹھاکرے کو دسہرہ ریلی کے لیے شیواجی پارک کی اجازت ملی ہے، اور 2 اکتوبر کو یہ ریلی ہوگی۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن بی ایم سی نے شیو سینا یو بی ٹی کو 2 اکتوبر کو شیواجی پارک میں اپنی سالانہ دسہرہ ریلی منعقد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ناظرین، مراٹھا برادری، مراٹھا سماج کا ٹینشن اور تناؤ بڑھا دینے والی بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ ریزرویشن کے جی آر کے خلاف ممبئی ہائی کورٹ میں 2 درخواستیں داخل کی گئی، اور خبر ہے کہ او بی سی
तहरीक भी आड़े आ रही है। मराठा बिरादरी के तनाव को बढ़ाने वाली खबरें मंजर आम पर आ रही है। मराठा लीडर मनोज जरंगे पाटिल ने मुंबई में भूख हड़ताल की। उनकी भूख हड़ताल का नोटिस लेते हुए हुकूमत ने उनके कुछ डिमांड्स, कुछ मुतालबात मान लिए हैं। अगरचे के हुकूमत ने आमतौर पर मराठा बिरादरी को कुनबी सर्टिफिकेट जारी करने के मुतालबे को कबूल नहीं किया, लेकिन हैदराबाद गजट के मुताबिक हुकूमत ने कुंभी सर्टिफिकेट जारी करने की मंजूरी दे दी, जिसकी वजह से मराठा बिरादरी में खुशी का माहौल है। इस फैसले से मराठवाड़ा में मराठा बिरादरी को बड़ी राहत मिली, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से ये GR जारी करने के फौरन बाद OBC लीडरों ने इस GR पर एतराज किया और अब मुंबई हाई कोर्ट में 2 दरखास्तें रिजर्वेशन के GR के खिलाफ दाखिल हो गई। नाज़रीन, मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश की पेशन गोई की खबरें आ रही है और खबरें हैं कि 16 से 18 सितंबर तक बड़ा खतरा है। महकमे मौसमियात ने बड़ी वार्निंग दी है। महकमे मौसमियात ने वार्निंग देते हुए कहा कि 16 से 18 सितंबर तक मुंबई समेत रियासत भर में ज़बरदस्त बारिश होगी। मुल्क की कई रियासतों में भी खतरनाक बारिश का इम्कान है। आप जानते हैं कि हरियाणा, पंजाब तो डूब चुका है और बड़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहा है और अब महाराष्ट्र की भी कई इलाकों में बारिश की पेशनगोई है। मुंबई का हाल तो यह है कि मुंबई में इतना पानी हो गया कि मुंबई की जितनी झीलें हैं वहाँ पानी का ज़ख़ीरा 98% हो चुका है। अब जाहिर बात है अगर इससे आगे बढ़ता है तो फिर सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर से कतर के दोहा पर हमले को लेकर तशवीश का इजहार किया और उनसे मोहब्बत का इजहार किया और कहीं ना कहीं गोया कि ये सपोर्ट का ऐलान है। और आप जानते हैं कि इजराइल ने हमला कर दिया है कतर के दोहा में। अब कतर ने अरब और मुस्लिम मुल्कों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इजरायली हमले से नाराजगी का इजहार करते हुए कतर ने कहा कि अमेरिका काबिले भरोसा नहीं है। ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं। जी हाँ, ये तो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सबसे बड़ा आतंकी कौन है वो सब देखें। अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े हो। ईरानी लीडर सुप्रीम खामेनेई ने बयान दिया कि देखो सुनो, अमेरिका काबिले भरोसा नहीं है। इसलिए हम नरेंद्र जी मोदी से भी कहते हैं कि तुम तो प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे इसका और तुमने इसके आने पर अरबों रुपये उड़ा दिया, खर्चा कर दिया हमारे मुल्क का। और इसी ट्रंप ने हिंदुस्तान के सीने में भी खंजर घोपा 50% टैरिफ लगाकर। तो अब दुनिया मिलकर ये कह रही कि अमेरिका काबिले भरोसा नहीं है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच रोकने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। जी हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फालतू अर्जी पर समाअत करने से, सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया और कहा ये तो एक मैच है, होने दीजिए। खेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खेल खेल होता है, इसे इसी नजरिए से देखना चाहिए। मगर क्या करें, हमारे मुल्क में अनभक्त, गोबर भक्त, नफरती चिंटू, जहरीले सांप जिनको हर जगह हिंदू मुसलमान करना होता है, वो मैच में भी हिंदू मुसलमान करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच रोकने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक धमाका खेज बयान दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर पूरे मुल्क में वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लगाया, पूरे मुल्क का सबसे बड़ा और पसंदीदा नारा बन गया। मोदी जी और बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रहे, इलेक्शन कमीशन मुंह छुपाता फिर रहा है। अब राहुल गांधी ने एक और धमाका किया है और राहुल गांधी ने कहा कि हम मजीद एक और हाइड्रोजन बम, एक धमाका खेज सबूत आपको देने वाले हैं वोट चोरी पर। रायबरेली में राहुल गांधी के बयान से हलचल मच गई। राहुल गांधी ने बाकायदा कहा कि अभी तो एक
हाइड्रोजन बम मेरे पास में जो फोड़ूंगा उसमें सब साफ हो जाएंगे। यानी बीजेपी की और जितनी पोल है वो सारी की सारी बीजेपी की जनता के पास आ जाएगी और पोल खुल जाएगी। इसीलिए लोग नेपाल के हाल को देखकर खुद बड़े बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से भारत ने भी सबक सीखना चाहिए कि जब जनता रोड पर आती है तो क्या हाल करती है। तो बीजेपी ने और खासतौर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो तानाशाही हिटलरशाही कर रहे हैं उनको सबक सीखना चाहिए पड़ोसी मुल्क से कि जनता अगर एकदम बौखला गई और तिलमिला गई और गुस्से में आ गई तो फिर जैसे और मुल्कों के वजीर आजम को छोड़ कर जान बचाकर भागना पड़ रहा है, शायद ऐसा माहौल हमारे प्यारे मुल्क में भी बन सकता है। इसलिए खैरियत और आफियत, अमन, शांति इसी में है कि आप अपनी वोट चोरी की हरकत को बंद करें। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि सोनिया गांधी के खिलाफ एक दरखास्त दायर की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट में ये अर्जी की गई थी कि सोनिया गांधी शहरियत हासिल करने से 3 साल पहले ही वोटर लिस्ट में अपना नाम इंदराज करा चुकी थी। तो सोनिया गांधी के खिलाफ जो दरखास्त दायर की गई थी कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया, यानी निकाल कर फेंक दिया। नाज़रीन, महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में जन विश्वास एक्ट नाफिज होगा। हुकूमत महाराष्ट्र ने 6 रियासती कवानीन से फौजदारी दफात ख़त्म करने का अमल शुरू कर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने 6 रियासती कवानीन में शामिल सख्त दफात को नरम या ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इन कवानीन में महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1961, महाराष्ट्र ट्रेड यूनियंस की शनाख्त और गैर मुनसिफाना मजदूरी के तरीकों की रोकथाम एक्ट 1971, ऐसे जो एक्ट है इनको नरम करने या ख़त्म करने की कार्रवाई हुकूमत ने शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर आ रही है। जहाँ रियासत महाराष्ट्र की सरजमीन अकोला शहर में पहली मर्तबा कारी उसामा साहब आनंदी फलाही सूरत गुजरात के हजरत अक़दस हाफिज मोहम्मद सादिक शाह दामद बरकातुहुल आलिया की दावत पर कारी उसामा आनंदी आ रहे हैं। इदारा दीनियात मदरसा तजवीदुल कुरान अकोट फाइल अकोला महाराष्ट्र का अजीम शान इजलास आम बमौका तकमील 3 साला मुमिना कोर्स 14 सितंबर 2025 बरोज इतवार बाद नमाज जोहर बमकाम वेलकम लॉन अकोट रोड अकोट फाइल अकोला महाराष्ट्र में होने जा रहा है। ज़ेर सरपरस्ती बानी इदारा हजरत अक़दस मोहम्मद सादिक शाह साहब दामद बरकातुहू और इस इजलास की सदारत फरमाएंगे हजरत मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब अकोला, मुक़र्रिर खुसूसी के तौर पर कारी उसामा साहब आनंदी और हजरत मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान बिन मुफ्ती कलीम खान साहब लोहारवी ये तशरीफ ला रहे हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बता दूं कि इस इदारे में हाफिज मोहम्मद सादिक के मैं खुद 5 मरतबा जा चुका हूं। बहुत अच्छे पैमाने पर अच्छे तरीके से ये दीन की तालीम को आम करने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सैकड़ों बच्चियां और सैकड़ों बच्चे कौम के इनके इस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छे पैमाने पर यह इदारा चल रहा है। मैं हाफिज मोहम्मद सादिक साहब को, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और अपील करता हूं कि आप तमाम लोग 14 सितंबर के इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।